I think for me it's about like working for my country, and इसी उससे हमने इसको जब start किया था तो वो एक ये था कि I found this very interesting quote, just an enemy is someone whose story we have never heard. So हमारे लिए पाकिस्तान जो है वो उसी तरीके से है कि हमने पाकिस्तान को सिर्फ एक अपनी न्यूज चैनल से समझा है. There was no other way. या तो Correct. हमने स्टोरीज सुनी है पार्टीशन, जो कि मेरी Absolutely. तो नहीं थी, मेरी फैमिली की, बट द थिंग दैट आई हैव हर्ड, राइट, Right. एज फ्रॉम पॉपुलर सिनेमा. दादा तो परदादा से. उससे सुना है, या और प्लस या फिर जो हम मीडिया में देखते हैं, जो न्यूज में देखते हैं. So I felt that there is a need for us to explore Pakistan through Pakistan, basically to hear their stories. हमारे narratives हैं, we are very adamant about our narratives, and उनके narratives हैं, but these narratives never meet. आगाज़े दोस्ती का जो purpose था वो यही था कि we will not give any view, we will not say कि ये इस तरीके से होना चाहिए या ऐसा है, but we just want the narratives to meet. All views and opinions expressed in this podcast are not meant to offend or hurt the sentiments of, including, but not limited to, any person, dead or alive, religion or ethnic group, community or country. The primary purpose of this podcast is to build a cultural bridge and shed light on the similarities that we share with our friends from across the border. Welcome to another really interesting and really intense episode of 883 to Infinity. Today we have once again, two very special people, special in their own accord for what they've done, what they've gone through, and what they plan to do. First one from India is Dr. Devika Mittal, who is a Delhi-based researcher, educationist, and an activist. She works as an assistant professor of sociology at Bharati College, Delhi University, and has recently completed her PhD at the Delhi School of Economics. Today, she is representing her role in Aghaaz-e-Dosti, an Indo-Pak friendship initiative from the Indian side. Her work on the subcontinent, on India, and on Pakistan has been featured in national and international TV media, including Aaj News, Indus News, and even Vox News. Our second guest for today is Raza Khan. Raza is a peace educator and has worked actively with children across the borders of India and Pakistan to transform the narrative of enmity and hatred in everyday cultural spaces. In 2017, Raza, along with some youngsters, registered an organization named Hum Sab Ek Hain with the objective to promote peace and harmony. Raza became the convener for Aghaaz-e-Dosti Pakistan in May of 2017. This was designed to be a friendship initiative through joint collaborations of NGOs Mission Bharatiyam of India and Hum Sab Ek Hain of Pakistan. The aim of this initiative is to create a people-to-people contact to raise concerns of the common enemies that South Asian countries face, such as climate change, poverty, and a growing intolerance to other social issues. Raza has also been engaged with the community as an active member of the Awami Art College, which aims to intervene in the public space for the cause of peaceful coexistence and celebration of diversity. Raza has also worked extensively in the field of research revolving around social issues. Welcome, Raza. Welcome, Devika. Let's get into it. Hi, Subir. Thank you for having us. Welcome, Devika. Hi. Raza bhai, welcome. Thank you. So this week, रजा भाई ने हमें बताया कि उनकी सॉफ्टवेयर की लेवल लो है. रजा भाई थोड़ा सा हम इसमें जोक करते रहते हैं, टेंशन ना लेने का. नहीं मुझे कोई टेंशन नहीं है भाई. ठीक है यार, कुछ है चक्कर, क्योंकि मेरी वीडियो ऑन ऑफ होती जा रही है. But I'll just keep turning it on whenever it happens. Great. it seems that even your software levels are going up and down this week then. Yeah, bhai. So welcome to the show, Devika and Raza bhai. Devika, our listeners would love to hear something about you. Why don't you introduce yourself? And Raza bhai, uske baad aap apni baare mein thoda introduction de dijiye before we jump into your initiative and what you guys have been up to with Aghaaz-e-Dosti. Sure, Subir. So professionally, I teach sociology to undergrad students in Delhi University. And besides this, I've been involved with Aghaaz-e-Dosti since it was started in 2012. I have been interested in these issues in basically India, Pakistan, and मेरा कोई इससे as such family कोई ऐसा history नहीं है. It's not like I came or like my forefathers came from Pakistan. I was just an average Indian who grew up hating Pakistan, wondering why do they hate us so much, right? And one day, through my post-graduation in South Asian University, I was able to meet Pakistanis, and I was so surprised to know कि उनको भी लगता था कि हम उन्हें hate करते हैं. It was like this mutual sort of a, this stereotype or this notion that we hate each other.
but actually I realized that we do not really hate each other. So, it was this basically realization that it was not hatred basically. It was actually this curiosity that we had about each other. And I realized that हमारे पास इतना कुछ था एक दूसरे से बात करने के लिए. So it was almost like, even though it was the first time I was meeting them, it was like we have met after such a long time. So we kept on talking, So I think this is how I also look at India-Pakistan relationship. Lovely. That's all from Lovely. Thanks, Devika. Welcome to the show. रजा भाई, आपके बारे में कुछ बताइए, आपका बैकग्राउंड क्या है? मेरा नाम रज़ा है और मैं अगर पाकिस्तान इंडिया की उसकी बात करें तो मेरा एक डिवाइडेड फैमिली से वो है. मेरी अम्मी और मेरे अब्बा की तरफ से दोनों जो थे वो राजस्थान से अलवर से माइग्रेट करके आए थे और मेरी दादी के भाई और मेरी अम्मी के भाई वो इंडिया में ही रह गए थे. वो तो ये जो आने जाने का जो दिक्कत थी और वो सारा वो इसको तो बचपन से ही वो मतलब देखा और वो घर में एक वो होती थी. और मेरी फैमिली जो है वो कोई ऐसे एंटाई इंडिया वो नहीं थी और हमेशा से ये एक होती थी उनको कि वो कब ऐसे कोई बने कि वो जाए. और मेरी माँ की तो खैर डेथ भी इसी उसमें हुई कि वो अपने भाई से वो नहीं मिल सकी वहाँ पे जाके. उनके भाई आए थे 2-3 बार इधर लेकिन वो खुद नहीं जा सकी. और मेरा जो वो है पॉलिटिक्स में मेरी वो है इंटरेस्ट और इंडिया के साथ बचपन से ही कह लो कि एक रोमांस सा था कि कब जाने का वो और वो सारे उसमें. तो मेरी कोई इंडिया की तरफ बल्कि मेरा झुकाव ज़्यादा उधर था थ्रू बॉलीवुड और म्यूज़िक और बाकी सारे उसमें. और काम जो है वो मैंने 2009 से कह लो कि शुरू किया. और उसके अलावा मैं और भी पाकिस्तान में जैसे रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म हो गया उसको काउंटर करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के जो वॉलंटियरली जो बेस्ड जो इनिशिएटिव्स थे मैं उनका पार्ट था. जिसमें अवामी आर्ट कलेक्टिव है जिसमें एक लाहौर बचाओ मूवमेंट थी उसमें मैंने काम किया. और एक स्पेस थी जहाँ पे हम ऐसे यूथ के साथ डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ करते थे कि वो जो इंतहा पसंदी है उसकी तरफ ना जाए और इस तरह की वो चीज़ें थी जिनमें मेरा वो. और रजा भाई, आप इस समय कहाँ पे हो? अभी मैं स्वीडन में हूँ. स्वीडन में? अच्छा, कौन से शहर में रह रहे हैं? मुझे 2 साल हो गए यहाँ पे आए हुए गौतमबर्ग में. और मैं और मेरी वाइफ और हमारी बेटी है 1.5 साल की तो हम तीनों यहाँ पे रहते हैं. राइट. कौन से शहर में? गौतमबर्ग में. Got it. Got it. And Devika, you're based out of Delhi. Yes. Lovely, lovely. So let's take a couple of steps back, Devika. Why don't you tell us how you got into this initiative of Agazi Dosti? What does it really stand for? What was your introduction to this initiative? And what's been the journey so far over the last 9 odd years? हाँ, ये so रजा भाई भी जैसे बोल रहे थे ना, he spoke about कि मैं ये काम. So देविका, ये काम है क्या? Like for example, हम बड़े होते थे तो भाई तुम डॉक्टर हो, तुम ये बनोगे, लॉयर बनोगे. What is this काम and how did you fall into it? So as I said, मेरा पाकिस्तान से as such कोई भी relationship नहीं था, कोई मेरे relatives वहाँ पे नहीं थे, but it was just this curiosity that I had. So ये कि जानना, in fact जब मेरा admission हुआ South Asian University में, I got admission in many other places as well, but यहाँ पे मेरा बहुत interest था सिर्फ इसलिए कि I would meet Pakistan. So I was like, चलो finally हम मिलेंगे और देखते हैं, what is really the reality about. तो यहाँ से जब when I started, when I actually met them and I found कि हम कितने similar हैं, so I was very surprised to know कि हमें ये बताया गया for so many years that they hate us and सारी जितनी भी problems हैं वो actually उधर से आ रही हैं, for some weird reason they just do not like us, they're always opposing us. तो ये जो stereotype था, which I thought कि it's very important to counter as well. Because it's not simply about India Pakistan, it's about Hindu Muslim as well. Correct, of तो course. ये कहीं ना कहीं मैं इसको इस तरीके से देखती हूँ. And like I would not say that why I got into this work, but I would say why I'm still doing it. So I think it's been 8-9 years now, I'm absolutely correct, कि मैं ये काम कर रही हूँ, and I am here because I really have felt the need for it.
कि अब क्योंकि मैं इस इशू पे काम करती तो लोग मुझे मुस्लिम के तौर पे देखते हैं, जैसे अस्सलाम वालेकुम आप, सो इट्स लाइक they have started seeing me as a Muslim. They started seeing me as, maybe who's very, let's say, for some reason bent towards Pakistan, which Correct. again shows the problem in our society, Correct. With right? the That thinking. कितना Yeah. ज़्यादा gap, yes, exactly, कितना gap है लोगों में. So I think for me it's about, like working for my country. एंड इसी उससे हमने इसको जब स्टार्ट किया था तो वो एक ये था कि आई फाउंड दिस वेरी इंटरेस्टिंग कोट, जिस एन एनिमी इज समवन हु स्टोरी वी हैव नेवर हर्ड. सो हमारे लिए पाकिस्तान जो है वो उसी तरीके से है कि हमने पाकिस्तान को सिर्फ एक अपनी न्यूज चैनल से समझा है. देयर वाज नो अदर वे. या तो Correct. हमने स्टोरीज सुनी है पार्टीशन, जो कि Absolutely. मेरी तो नहीं थी, मेरी फैमिली की, बट द थिंग दैट आई हैव हर्ड, राइट, Right. एज फ्रॉम पॉपुलर सिनेमा. दादा तो परदादा से. उससे सुना है, या और प्लस या फिर जो हम मीडिया में देखते हैं, जो न्यूज में देखते हैं. So I felt that there is a need for us to explore Pakistan through Pakistan, basically to hear their stories. हमारे narratives हैं, we are very adamant about our narratives, and उनके narratives हैं, but these narratives never meet. आगाज़े दोस्ती का जो purpose था वो यही था कि we will not give any view, we will not say कि ये इस तरीके से होना चाहिए या ऐसा है, but we just want the narratives to meet. एंड एक और चीज है कि आकाशी दोस्ती को हम इंडो पाक पीस इनिशिएटिव नहीं, हम उसको इंडो पाक फ्रेंडशिप इनिशिएटिव देखते हैं. Lovely. जब आप पीस की बात करते हैं तो पीस के अलग अलग इमोशंस आते हैं, एंड एक होता है कि ना Correct. फॉर पीसेस से कि ना पीस के लिए आप ये ना करें, लाइक उस तरीके का. तो पीस हैज दिस कॉनोटेशन ऑफ टॉलरेंस, बट फ्रेंडशिप ऑन द अदर हैंड इज अबाउट वर्क, इट इज अबाउट accommodating. तो हम वो एक फीलिंग लेके आना चाहते हैं दैट आप किसी को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, आपको एक्चुअली में उन्हें समझना है. यू हैव टू हैव, लेट्स से, अ बॉन्ड विद देम. एंड हम ये भी देखते हैं कि इफ आई हैव फ्रेंड इन पाकिस्तान, आई विल नेवर थिंक wrong about them, because I will always Of feel, I course. will always have a human side of conflict, और वो human side of conflict देखना बहुत जरूरी. So this is Correct. what आगाज़े दोस्ती has been trying to do through our different activities. Correct. Correct. That's lovely. रजा भाई, आप कैसे घुसे ये इनिशिएटिव में? आपका इंट्रोडक्शन क्या था? मैं आगाज़े दोस्ती से पहले ही मैंने बताया 2009 में मुझे मिला था चांस इंडिया जाने का, और Oh, wow. उसके बाद से वो सिलसिला जो है वो शुरू हुआ. फिर हमने यहाँ पे पाकिस्तान में रिलैक्स वीज़ा पॉलिसी रिजीम के ऊपर एक हमने काम किया. उसमें हमने कोई 60,000 के करीब लोगों से हमने एक पटिशन साइन करवाई. प्राइम मिनिस्टर के नाम थी वो पटिशन के, वो वीज़ा पॉलिसी में नरमी करें, टूरिस्ट वीज़ा जो है वो शुरू करें. और तो इस तरह से उसमें फिर जो इसके हैं हमारे रवि नितेश, वो आए थे यहाँ पे उसकी क्लोजिंग सेरेमनी में. उसके तो मैं उनसे मिला था. उससे पहले कुछ और भी थे, क्योंकि मैं गया था इंडिया और वहाँ से भी लोग आते रहते थे उनके साथ मिलना में. तो रवि भाई से वो इस तरीके से वो मेरी वो हुई थी मिलने की. और फिर बाद में हमारी एक और वो AED में थी कन्वीनर आलिया, तो वो भी हमारे साथ इंडिया गई थी जब मैं दूसरी या तीसरी बार गया था या दूसरी बार. तो उसके ज़रिए से फिर मेरा वो हुआ. फिर रवि भाई ने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया देविका से, और इस तरह से फिर मैं AED की उसमें उसका वो पार्ट बना. और हम जो क्लासरूम टू क्लासरूम हमारा एक वो है कि हम बच्चों की वीडियो लिंक के ज़रिए बात करवाते हैं, लेटर्स की शेयरिंग का वो होता है इस तरह से. तो वो फिर इस तरह से मेरी वो हुई AED के साथ जो जुड़त थी. और उसमें हमने ये फिर कैलेंडर की लॉन्च जो है वो करते हैं, और इस तरह से मेरा वो एक बना वो आगाज़े कैलेंडर की लॉन्च किया है? हम एक हर साल दोनों साइड से बच्चों से पीस और फ्रेंडशिप के थीम के ऊपर पेंटिंग्स इकट्ठी करते हैं, और उसमें से 6 पेंटिंग्स हम दोनों साइड से सेलेक्ट करके, और इसी तरह से 12 ऐसे लोगों का मैसेज उसमें लेते हैं जिनकी कोई पीस और फ्रेंडशिप और इंडिया के साथ एक अच्छे रिलेशन के उसमें जिनकी वो रही हो काम करने की. तो और उस कैलेंडर को फिर हम मुख्तलिफ शहरों में एक सेमिनार में उसकी लॉन्च करते हैं, और उसके ज़रिए से हम दोनों मुल्कों के जो
कह लें कि हालात हैं, जो मसाइल हैं, उनके ऊपर हम ऐसे स्पीकर्स को इनवाइट करते हैं जो उसके ऊपर बात करते हैं। ये रसा भाई, जैसे देविका बोल रही थी शुरू में, मतलब इनिशियली उसका मतलब पाकिस्तानी एक कोई कोई अलग ही मखलूक थी जिसके बारे में वो जानना चाह रही थी कि वो पता नहीं कैसे होते हैं। आई वांट टू सी व्हाट हाउ दे आर, हाउ दे रिएक्ट लाइक। आप इससे पहले कि आप इस प्रोजेक्ट पे आने से पहले आपकी क्या, मतलब इंडिया बॉलीवुड ये तो आपने बोला, लेकिन आपकी क्या आम इंडियन पर्सन लाइक जहन में एक बंदा सोचिए यार ये एक इंडियन बंदा हो सकता है, या कोई कोई इंडियन औरत हो सकती है, उसकी मतलब आपके जहन में क्या किस किस्म के थॉट्स थे? यार मेरे ज़हन में बिल्कुल वो था, आप कह लो कि एक आपको शायद ही कोई पाकिस्तानी ऐसा मिले जो इंडिया के बारे में मतलब पाकिस्तान से भी आगे जाके उसके लिए वो रखता हो वो फीलिंग्स। मेरी किसी तरह की वो, मैं कह रहा हूँ कि मेरा तो एक वो था कि कब जो है वो मैं कभी जाऊँ इंडिया और जाके वो वहाँ से मिलूँ। किसी से कोई नफ़रत की वो नहीं थी बिल्कुल भी, हमारे घर में थी ही नहीं। मेरे अब्बा को भी बिल्कुल वो नहीं थी, वो 2 बार ही गए थे मिड 80s में। मेरी दादी को लेके, और भी गाँव की कई औरतें थीं जिनके वहाँ पे रिलेटिव थे, वो हमारी ही बिरादरी से थीं, तो वो कोई 7-8 औरतों को लेके 2 बार ही गए थे उस वक़्त वो इंडिया वो। तो हमारे घर में कभी भी एंटी इंडिया वो रहा ही नहीं है वो। मतलब नाना-नानी के घर जाना है तो वहाँ पे भी वो यही सुनने को मिलता था कि नाना जो है वो अपने बेटे के लिए, बहनें अपने भाई के लिए, भाई अपने भाई के लिए। तो और उस टाइम पे तो जैसे कोई ख़त लिखना या इस तरह की चीज़ें भी वो एक तो वो पढ़े लिखे इतने नहीं थे, तो वो बहुत कम ऐसा वो होता था। फिर मेरे अब्बा जब वहाँ पे गए उस टाइम में कोई 3-3 महीने का वीज़ा मिल जाता था। तो वो जब पहली बारी गए तो वो वहाँ पे एक लोकराम कोई थे, उनसे उनकी फ्रेंडशिप हुई और उन्होंने उनको हिंदी सिखाई उन 3 महीनों में वहाँ पे। वो वहाँ से हिंदी सीख के आए। और मुझे याद है कि मैं उस वक़्त 4 और 5 क्लास में था। मेरे दादा के कज़न थे, उनको हिंदी आती थी। तो वो जब दूरदर्शन का चैनल जब चल रहा होता था, तो उस पे हिंदी वो थोड़ा ऊँची आवाज़ में पढ़ते थे कि क्या लिखा हुआ है, और मुझे बहुत वो होता था, और मुझे हिंदी जो जिस तरीके से वो लिखी हुई होती है, मुझे वो बहुत अच्छी लगती थी वो। तो Script. मैंने उनकी बहुत खिदमत भी की, इस लालच में कि ये मुझे हिंदी सिखा देंगे। तो मैंने एक बारी उनको कहा भी, तो मुझे उन्होंने कहते कि अपना जाके पढ़ो, ये इसकी तुम्हें क्या ज़रूरत है, तुमने क्या करना है ये सीख के। उन्होंने मुझे नहीं सिखाई। वो फिर बाद में जब मैं पहली बारी गया इंडिया, वापस आया, तो फिर मैंने लाहौर में उर्दू बाज़ार से जाके कायदा ख़रीद के, तो मैंने खुद सीखी फिर वो। Lovely. तो हाँ, ये वाकई मतलब ये एक डिफरेंट स्पेक्ट्रम है देविका। जैसे फॉर एग्जांपल मतलब एक है नफरत जो बाय डिफॉल्ट है ना कि, और एक है प्यार। ये जैसे इन्होंने, रजा ने खुद बताया कि ये ही लीन्स टुवर्ड्स द अदर। मगर क्या बीच में, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यार मैं सोचता हूँ, जहन में सोचता हूँ कि मलेशियन एक कोई इंडिविजुअल है, तो आई डोंट हेट देम, आई डोंट पर्टिकुलरली लव देम आइदर, या कोई स्कैंडिनेवियन या कोई रैंडम है। So is there, do you think, given your experience, Devika, like, is there a line in the middle, or do you necessarily need to be either, towards the more, oh, I love the other side, or I hate the other side? Is there a neutral ground in the middle? The question should be, is there objectivity in our country? There Yeah, isn't. that's a That smarter is the way to thing, do it. right? So हमें अक्सर हम एक certain environment में जी see it's like हम एक ऐसे environment में जीते हैं जहाँ पे हमें constantly ये कहा जाता है कि सरहद उस पार जो है दुश्मन है, एक दुश्मन मुल्क है, और ये दोनों साइड पे हो रहा है। जिन लोगों का डिवाइडेड फैमिली मतलब थे, या फिर जिनका कुछ ऐसा कोई है मतलब लाइक रिलेशन वहाँ पे, उनका जो एक्सपीरियंस है वो अलग है। लेकिन जिन लोगों ने सिर्फ पाकिस्तान को मीडिया के थ्रू समझा है, या उन्होंने ये जो कहानियां हम सुनते हैं उनके थ्रू समझा है, तो उनका जो एक्सपीरियंस है, उनके जो व्यूज होते हैं, वो मतलब आई वुडंट से कि कंप्लीटली हेटेड ही होंगे हमेशा, बट ये हमेशा ना एक दिल में वो होता है कि देखो उन्होंने हमारे साथ ये किया। और वो चीज मैं ये मानती हूँ कि वो सिर्फ लेट्स से नेशनैलिटी को नहीं है, वो रिलीजन को लेकर भी है। तो ये मतलब मैंने एक्सपीरियंस करा है ना, लिबरल्स भी मतलब वो रहता है कि सम पीपल हैव इट बिकॉज ऑफ द कल्चर दैट वी लिव इन, जहाँ पे दोनों साइड पे मेजोरिटेरियनिज्म जो है वो बहुत मतलब हद तक है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि
एक्सट्रीम में भी ना हो, बिल्कुल ही वो ना हो, लेकिन लोगों में बिकॉज ऑफ द स्टोरीज दैट वी हैव रेड they or we have heard, there is, let's say, this inner this thing, why do they do this with us? वो चीज मतलब Interesting. Yeah, very interesting. Devika, we briefly spoke about the calendar. I'm sure there have been a lot of other activities, initiatives that have been taken as part of the program over the last decade. Why don't you tell us something about some of the marquee activities that you guys have undertaken with the intention of building friendship with people from both sides of the border? Okay, one of the first and major activities that Awazi Dosti did was Aman Chopal. So उसमें so we used to have these, like कोई पाकिस्तान से अगर आया and we get to know हम पाकिस्तानी या पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हो गए या एकेडमिशियन हो गए, तो हम उन्हें स्कूल में लेके जाते थे, इंडियन स्कूल में, एंड वहाँ पे दे यूज्ड टू बी दिस क्वेश्चन आंसर सेशन. तो उसमें वो नहीं है कि वो अपना बता रहे हैं, उसमें कि बच्चों के सवाल होते हैं और वो जो बंदा है जो एक्सपर्ट के तौर पर है वो उनके जवाब देते थे. सो उसमें काफी एक्सपीरियंसेस भी रहे हैं. तो एक पहला जो हमारा एक्सपीरियंस था उसमें ये था, सो ऑब्वियसली स्कूल डू नॉट वांट टू डू दिस एक्टिविटी. पाकिस्तान जैसे बॉम्ब की तरह एक गिरता है कि भाई हमें नहीं करना इस पे, तो वो वाला एक होता था. एक स्कूल मान गया और वो क्यूरियोसिटी के नाम पे मान. तो जब जो है ये पाकिस्तानी एक्टिविस्ट जो है वो गई क्लास में, कोई भी बच्चा खड़ा नहीं रहा, कोई भी नहीं. एंड दैट इज वेरी शॉकिंग बिकॉज इन इंडियन स्कूल्स, आई मीन आई वुडंट से पैन इंडियन, बट एक रहता है कि अगर कोई बाहर कोई प्रिंसिपल है या कोई टीचर है, कोई भी अदर बच्चे खड़े होते हैं एज अ फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट. बट व्हेन दिस पाकिस्तानी एक्टिविस्ट एंटर्स द क्लासरूम, नो स्टूडेंट स्टैंड्स अप. एंड वी वर लाइक अब तो गए ये क्या हो गया. तो ये तो बेसिक चीज है, बेसिक चीज भी नहीं. Absolutely. लेकिन फिर जब क्वेश्चन आंसर का वो शुरू हुआ तो धीरे धीरे करके मतलब बच्चे थोड़े से नॉर्मल हुए. और उनके जो सवाल होते हैं वो ये नहीं कि वो प्यारे सवाल पूछ रहे हैं कि भाई आपको यहाँ पे कैसा लग रहा है, वो पूछ रहे हैं कि टेररिज्म क्यों हो रहा है, क्यों आप हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करते, क्यों आप ये सब करते हैं. तो इट वाज लाइक, तो वो मुझे जो हमने करे अमन चौपाल, एंड ऐसे ही सवाल एक पैटर्न में एक्चुअली दिखा सकती हूँ कि बहुत ही हमेशा ये सवाल पूछेंगे आप कितनी ऑपरेस्ड है, राइट, कि क्या सब लोग वहाँ पे बुर्खा पहनते हैं, वेरी टिपिकल क्वेश्चन. पाकिस्तानी हिंदूज के बारे में पूछेंगे. तो ये सारे जो सवाल हैं वो आते हैं बच्चों के थ्रू, व्हिच आल्सो टेल्स अस दैट स्टूडेंट्स आर पॉलिटिकल बीइंग्स. तो ये चीज कहना कि भाई मुझे पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा नहीं होता. वी ऑल हैव दीज नोशंस और जब हमें मौका मिलता है वो हम नोशन जरूर बोले. तो अमन जो इम्पोर्टेंट एक एक्टिविटी में, इट्स वन ऑफ माय वेरी, आई लुक फॉरवर्ड टू दिस एक्टिविटी बिकॉज इससे ये कि बच्चों को जवाब मिलते हैं, बच्चों को दूसरे साइड के नैरेटिव्स मिलते हैं जो बहुत जरूरी है. फिर एक बार ये हुआ कि एक जो पाकिस्तानी गेस्ट जो है वो नहीं आ पाया, वीजा का बहुत बड़ा इशू रहता है. तो उस टाइम हमने पहली बारी क्लासरूम कनेक्ट किया कि बच्चे आपस में बात करें. तो मुझे लगा कि देखो ये तो एक बड़ा सा ए पॉलिटिकल मॉडरेट बात करेंगे, बिकॉज हमने उनको बोला कि कल्चर के बारे में बात करना है, पॉलिटिकल क्वेश्चन नहीं पूछ, बिकॉज वो सेम ग्रुप है, वो कैसे जवाब देंगे, वो लड़ाई होगी और कुछ नहीं होगा उसमें. तो जब लेकिन वो बात कर रहे हैं आपस में, तो दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू सी अ ह्यूमन साइड. जब हम सेशन से हमेशा पहले सवाल करते हैं कि पाकिस्तान सुनते ही आपके जहन में क्या, तो वो कहते दुश्मन. हमेशा यही आंसर आपको मिलेगा. फिर जब स्क्रीन होती है एंड जब उसमें देखते हैं तो दे रही है तो हमारी तरह है. तो ये होता है कि जब आप अपने एनिमी को एक्चुअली में देखते हैं तो तब मतलब क्या होता है, दैट वी हैव एक्सपीरियंस दैट दे आर inviting each other on festival, they are inviting each other to each other's home. Right. तो वो वाला है कि ये पूछ रहे हैं कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, आपकी टीचर भी आपको क्या बहुत होमवर्क देती है. So all of these questions that they are asking to somebody whom they had regarded as an enemy. So it was like kind Is of taking the veil off to make it slightly more human in terms of their interaction, in terms of their connection, in terms of the questions being asked. हाँ, एग्जैक्टली. सो दे वर एबल टू सी कि हमारी तरह ही है, इनके जो लाइक्स डिसलाइक्स है वो हमारी तरह ही है. बुक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, टीवी सीरियल, आपका फेवरेट क्रिकेट स्टार कौन है, तो दे आर ऑल लाइक क्लैपिंग. किसी ने सचिन तेंदुलकर बोल दिया वहां पे, तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स. कौन से स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, लाइक व्हाट एज ग्रुप वाज द कोहॉर्ट ऑफ? वी हैव ट्राइड इट लाइक विद डिफरेंट ग्रुप्स, बट जनरली वो वही है कि 6 to 8 वाले के साथ भी हमने ट्राई करा है. सो हमने एक्टिविटीज जो है अलग अलग ग्रेड लेवल्स के साथ मतलब कंडक्ट करी हैं. एंड हमने 6 to 8 हमारा एक रहता है, लेकिन हम जनरली वी आर ट्राइड की 9th के बाद हम लोग एक्टिविटी ज्यादा करें, बिकॉज वी आल्सो हैड अ नोशन दैट मे बी दे आर मोर पॉलिटिकल, बट वी डिस्कवर्ड दैट नो, ऑल स्टूडेंट्स आर पॉलिटिकल. इसका ग्रेड से इतना कोई रिलेशन नहीं. एक हमने एक्टिविटी करी थी जो हमने ग्रेड 4 के स्टूडेंट्स के साथ करी थी,
because Got they it. also ask, उनके notion थोड़े से और crystallize होने शुरू होते हैं, तो This letter exchange that you spoke about, that you ran with the fourth graders, did they know who they were writing a letter to? yes they were told. तो उसमें वो यही था, but they were just talking about कि वो किस क्लास में है, उनका favorite subject कौन सा है, it was more like that. तो वही मतलब we couldn't really do it like second or third round नहीं कर पाए, first round ही था. But हाँ, it was more about that, about them basically, and then they write a letter and they ask them about asking questions to them. Got it. वाह, रजा भाई क्या ये मतलब इस इनिशिएटिव्स में आपकी क्या थॉट प्रोसेस है? मेरा मुझे मतलब सिर्फ आपका याद क्या पड़ रोल रहा है था? कि एक बारी जो है वो एक ऐसा हुआ था कि वो थोड़ा नेगेटिव था कि हम ये पिटीशन जब साइन करवा रहे थे तो हम एक बहुत ही जो एलीट जो एक चेन है स्कूल की उसमें गए थे, तो वो पहले बच्चों ने वो साइन कर दी, वो थे 9th और 10th के जो अच्छा, स्टूडेंट। तो बाद में जब ऐसे ही उनको उनकी टीचर जब एक्सप्लेन करने लगी कुछ उनको, तो वो एकदम बस उनके जहन में ये बैठ गया कि इंडिया और इंडिया तो दुश्मन है, तो उन्होंने कहा कि वी डोंट वांट टू साइन। तो उन्होंने वो पिटीशन वापस लेके और हर बच्चे ने उसके ऊपर लाइन खींच दी, वो हुआ। लेकिन उसके अलावा मेरा जो उसमें जो एक्सपीरियंस रहा है पाकिस्तानी साइड से वो बहुत ही पॉजिटिव रहा है। वो बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा जब जैसे लेटर्स जब उनको जाके क्लासरूम में दिए और उनको बताया कि ये कहाँ से हैं, तो वो बहुत एक्साइटेड थे। और कुछ लेटर ऐसे थे कि उनमें इंडियन साइड से बच्चों ने जैसे सिक्के डाले हुए थे, राखियाँ डाली हुई थी, इस तरह की चीज़ें, गिफ्ट जो है वो इस तरह के उसमें थे वो लेटर्स के अंदर। और एक लेटर हमारे पास बम्बई से ऐसे आए थे कि यहाँ पे लाहौर में ईस्टर के ऊपर एक ब्लास्ट हुआ था इकबाल पार्क में, गुलशन रावी पार्क में। तो उसमें क्रिश्चियन जो थे वो बच्चे, क्योंकि ईस्टर पे वो ईस्टर का दिन था, वो वहाँ पे पार्क में ज़्यादा तादाद उनकी थी, तो वहाँ पे एक सुसाइड हुआ था, उसमें बहुत सारे लोगों की वो हुई थी डेथ। तो हमारी दोस्त हैं तो तुलिका, वो वहाँ पे टीचर थी बम्बई में स्कूल में, तो उन्होंने अपने स्टूडेंट से वो लेटर भेजे। तो वो जब लेटर हमें आए तो मैं उस स्कूल में वो लेटर देने गया जहाँ पे जिस स्कूल के 2 भाई, एक की डेथ हुई थी और एक हॉस्पिटल में रहा था उसके बाद। तो मैंने वो लेटर वहाँ पे जाके दिए। फिर बाद में उन बच्चों ने उनको जवाब में भी लेटर लिखे और उनकी आपस में वो हुई बातचीत भी। वो बहुत ही कह लें कि इमोशनल वो था वो सारा, वो उसमें बहुत वो बहुत टची से लेटर थे। एक और उस पे जो आई ए रहमान साहब हैं, उन्होंने, हमने बाद में उन लेटर्स की एग्जीबिशन की थी जो इंडिया से आए थे फैज़ घर में, तो उन्होंने उसके ऊपर आर्टिकल भी लिखा था। और एक मुझे इसमें याद पड़ रहा है कि एक बच्ची थी इंडियन साइड से, बेंगलोर से, वो दिल्ली आए हुए थे, उनके साथ हमारी वो थी क्लासरूम टू क्लासरूम। तो उस बच्ची का बर्थडे था, जो मुझे थोड़ा पहले बताया था कि इसका बर्थडे है तो आप बच्चों से कहिएगा कि वो उसको विश कर दें। तो हमें इतना टाइम मिल गया था कि हम केक मंगवा लें और दूसरी ऐसे बच्चे अपने हाथ से हैप्पी बर्थडे लिख के और इस तरह की वो कर लें। तो उस बच्चे के लिए ना वो सरप्राइज था, वो उसको बिल्कुल भी वो 6th स्टैंडर्ड की थी वो बच्ची। तो मुझे जो बाद में बताया कि जब वो हमारी वो बातचीत ख़त्म हुई तो वो बच्ची अपनी टीचर से जाके लिपट के रोना शुरू हो गई, और उसने रोते हुए सिर्फ वो ये कह पाई कि हमारे बीच में कश्मीर क्यों है। जो आप शुरू में बात कर रहे थे ना कि आप दोनों को चांस मिला एक दूसरे की तरफ आने जाने का और एक दूसरे के साथ बात करने का, इस प्लेटफॉर्म से अभी जो हम जो चाहते हैं वो यही चाह रहे हैं। हम एकदम से जंप नहीं करना चाह रहे किसी भी चीज़ को, और ना ही हम पॉलिटिक्स को बदल सकते हैं, हमारा इतना बड़ा वो है नहीं वो। लेकिन जो हम चीज़ कर सकते हैं उसमें, आगे जो आप बात करें उसमें देवी का बात करी थी, तो आप बात करें बात की, फ्रेंडशिप की और पीस की। Right. तो हम बजाय पीस पे जाने से हम सिर्फ हमारी
जो विश है या डिमांड है वो ये है ही ये कि आप सिर्फ लोगों को बात करने का मौका दें। राइट। जब वो बात करेंगे तो जैसे आपकी दोनों की एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप हो गई और चीज़ें आपके लिए वो आगे चली गई, तो वो बाकियों के साथ भी यही एक्सपीरियंस होगा और हमारा भी यही एक्सपीरियंस है। बात हो, बात के बाद फ्रेंडशिप हो, फ्रेंडशिप के बाद पीस का तो कोई, वो तो एक के साथ एक फ्री वाली बात हो जाएगी। कोई कितना भी वो लड़वाने की वो करे, वो वाली चीज़ फिर वो नहीं कर सकते। तो सिर्फ बात जो है ना, वो एईडी की जो जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, वो भले अमन चौपाल की है, लेटर राइटिंग की है, क्लासरूम टू क्लासरूम वीडियो लिंक पे बात करने की है, उसमें जो एक एलिमेंट, जो मेन जो एलिमेंट है वो ये है कि आप बात करने दें। मैं बहुत उससे कहता हूँ ये जैसे ये वाघा के ऊपर जो ये नफरत का वो सारा वो होता है और वो अपनी रीढ़ की हड्डी तोड़वा बैठते हैं रिटायरमेंट से पहले ही। ये जितना मर्जी वहां पे वो गाने लगा लें, नफरत का वो कर लें, ये किसी एक दिन वहां पे 15 मिनट के लिए वो बॉर्डर खोल दें और लोगों को कहें कि जाए मिलने एक दूसरे से। 70 कम से कम 70% लोग ऐसे होंगे जो बाद में सारी उम्र एक दूसरे के साथ रास्ते में रहेंगे। ये काफी वो ब्यूटीफुल। मौका ही नहीं वो मौका ही नहीं देते बात करने का हमें। जहाँ पे हर बातचीत का हर दरवाजा उनकी वो होती है कि वो बंद करते हैं। उनको बातचीत से डर लगता है। और बच्चे जब भी उनको आप उनको उनको मौका दें बात करने का, वो झट से चले जाएंगे विराट कोहली के ऊपर, वो राहत के ऊपर, वो आतिफ असलम के ऊपर चले जाएंगे, वो कटरीना कैफ के ऊपर चले जाएंगे, वो ताजमहल के ऊपर चले जाएंगे, वो बम्बई में चले जाएंगे। उनका यही होता है, वो उनको मौका मिले बस। जिसको मौका नहीं मिला वो देवका जैसे कह रही थी कि जो जानता ही मीडिया की उससे है, तो उसकी तो आंखों के ऊपर वो जो धुंध छाई हुई है, कभी उसको किसी वो जो आंखों का जो है उसके पास लेके तो जाए, वो 1 मिनट की बात होगी, वो एकदम से साफ देखने लगेगा। आई तो थिंक ऐसे हम ये जो रजा एस हाँ, गो अहेड सबीर। ये जो हमारी जो छोटी सी कई हफ्तों से इनिशिएटिव शुरू हुई है ये पॉडकास्ट, आई थिंक बिल्कुल इसी मिशन से लगी हुई है कि दोनों बॉर्डर के दोनों साइड से बात चले, कॉन्वर्जेशन चले, एंड विद ऑल डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ। आपका इनिशिएटिव बहुत ही नोबली मतलब स्टूडेंट्स की तरफ इनिशिएटेड था, क्योंकि यू स्टार्ट व्हेन पीपल आर यंग एंड दे स्टिल एमेबल। मतलब यंग एज से ये इम्प्रेशन हो ना हो, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट आई थिंक आपने जो बात कही बिल्कुल हमारे सेंटिमेंट से एको हुई 100%, और आई थिंक इससे ज्यादा बेहतर हम भी ना कह सके। So thank you for that, Rasa bhai. वाकई वाकई, बल्कि ये अपॉर्चुनिटी जिस वक्त एटलीस्ट मैं सुवीर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा मैच्योर हो, मैं तो बिल्कुल ही डम्बो था ना, तो उस वक्त मुझे जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी कि ये इंडियन साइड पे जाके उन लोगों से बात करने का, देखने का कि वो बहुत सारी चीज़ें हम जैसी हैं, बहुत सारी चीज़ें हमसे डिफरेंट है, मगर वो भी अच्छी बात है। उस वक्त मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये कितनी इंपॉर्टेंट या कितनी रेयर बात है। बैक इन 2008 इतना वो नहीं था। इट्स ओनली नाउ दैट आई रियलाइज के ये वाकई मतलब इट्स समथिंग दैट्स ओपन माइंड्स। और जो अब वो बात कर रहे हैं, अब इंटरनेट के ज़माने में, लाइक फॉर एग्जाम्पल से उस वक्त नहीं मिलता उस प्लेटफॉर्म के जरिए। आपका भी प्लेटफॉर्म है, हमारा कोई और प्लेटफॉर्म था, हम कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज की किसी चीज़ से गए थे, किसी बहाने से हम मिल गए तो हमारी बातचीत शुरू हो गई। अगर वो बहाना नहीं होता तो शायद मैं ऐसे ही रैंडमली एक बंदे को इंडिया में एजेंसी वाले को फोन करके बोलता नहीं यार हमारे साथ पॉडकास्ट कर लो, या कुछ भी, इवन तो मेरे जहन में कोई और थॉट्स होते कि नहीं ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, मगर मैं ऐसे ही उठा के वो करता नहीं। तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स की जरूरत तो है। मैं आपसे इत्तेफाक Absolutely. करता हूँ इस चीज पे। मैं Absolutely. कुछ मेरे अभी भी हैं जहन में ऐसे वाकयात जब मैं पहली बारी गया था और उसके बाद के। बताएं ना हमें। हम चंडीगढ़ गए थे और डीएवी कॉलेज में हमारा वहाँ पे स्टे था, हम हॉस्टल में रहे। पहला दिन था, सुबह के कोई 10-1 बजे होंगे, सेशन हो रहा था एक बड़े से हाल में। तो मैं निकल के मैं सिगरेट पीता था तब, तो मैं बाहर आ गया सिगरेट पीने के लिए और मैं चला गया कैंटीन में कि चलो मैं चाय पीता हूँ। वहाँ पे एक बच्चा था 10-12 साल का जो काउंटर पे खड़ा हुआ था। मैंने उसको
कहा कि मुझे एक चाय बना दें और एक कोल्ड पानी की बोतल दे दें, और मैं बैठ गया। वहाँ पे 3 लड़कियाँ आई थोड़ी सी देर बाद स्टाफ की, वो थोड़ा-सा एक दूसरे टेबल पे बैठी। उन्होंने मेरे गले में वो कार्ड देख के तो मुझे उन्होंने पूछा कि आप पाकिस्तान से हैं? मैंने कहा हाँ। कहाँ से हैं? मैंने कहा मैं लाहौर से। एक लड़की ने कहा कि मेरे जो नाना थे वो साहिवाल से आए थे। तो उन्होंने कहा कि अगर हम आपके पास बैठ के बातचीत करने की वो हो तो आपको कोई मसला तो नहीं है? मैंने कहा नहीं कोई मसला नहीं। मैं उनके लिए दोबारा गया काउंटर पे, तो उतनी देर में जो उस कैंटीन का जो ऑनर था वो एक सरदार थे, वो आ गए थे। तो मैंने उनको कहा कि मुझे 3 जो है वो कोल्ड ड्रिंक्स दे दें। और तो मैंने जब उनको पैसे, पहले मैं अपने पैसे दे चुका था उस लड़के को। मैंने जब उनको पैसे देने के लिए कहा तो मुझे कहता है वो पंजाबी में कि तुसी लाहौरों आइए ते लाहौर तो आया बंदा साडे लिए ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲਈਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਮਾਰੋ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ कि ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ पैसे दे रहे जी। मैंने बहुत उसको कहा, उसने कहा नहीं। उसने मुझसे उसके पैसे नहीं लिए। कहता है कोई भी चीज़ आपको चाहिए, आप यहाँ पे जितने दिन हैं आप मेरे मेहमान हैं, जब मर्जी आके जितना मर्जी यहाँ पे खाएं पिए, कोई मसला नहीं है। उसने नहीं पैसे लिए। Lovely. ए- और ऐसे ही जब मैं एक बारी और गया था, मैं चंडीगढ़ में जो बस स्टॉप है वहाँ पे बहुत लेट नाइट रात को मैं चाय पीने गया उधर। वहाँ पे भी उस बंदे ने मुझसे पैसे नहीं दिए। कहता है आपके बोल चाल से लग रहा है कि आप बॉर्डर के दूसरी साइड से आए हो। मैंने कहा हाँ जी। तो कहता नहीं पैसे नहीं लेने आपसे। अरे तो उसने नहीं लिए। Wow. मेरे 2 दोस्त उसी डीएवी कॉलेज के उसमें सुबह धोबी से कपड़े इस्त्री करवाने और जूते पॉलिश कर, उन दोनों ने पैसे नहीं लिए उनसे। अब आप अंदाजा करो कि एक जूते पॉलिश करने वाला बेचारा जमीन पे बैठा हुआ क्या इनकम होगी उसकी, और वो 2 लोगों के जूते फ्री में पॉलिश करके दे रहा है एहसान के साथ। तो मतलब ये है कि सिर्फ मौका दें लोगों को मिलने का, बात करने का। हमारा पुराना गांव है। अभी भी जब कोई पीछे का कोई गया हुआ जो आता है ना, कोई कनाडा से या कहीं से कि ये मेरे नाना दादा का गांव है, वो पूरा वो गांव में ऐसे है जैसे कोई सेलिब्रिटी आ गया हो। पूरा गांव पीछे पीछे बच्चे उसके साथ, वो जहाँ जहाँ जाता है लोग अपनी गाड़ियों में बिठा के, और जहाँ पे भी बैठ के चाय पिए पानी पिए, किसी तरह का कोई वो है ही नहीं कि कुछ ऐसा। अभी रिसेंटली बीबीसी की एक वीडियो थी, लाहौर में एक औरत है बूढ़ी, वो पार्टीशन के वक्त उसकी दोस्त थी, वो छोटी होगी तो उसके माँ बाप को, उस बच्ची के माँ बाप अपने जेवर और ऐसे घर की चीजें दे गए थे कि बाद में जब हालात ठीक होंगे तो ले जाए। वो अभी बेचारी वो ताला संभाल के बैठी हुई है Oh wow. Oh wow. कि वो आए और वो मुझसे मिल के जाए। मैं अभी भी उसको याद करती हूँ, और वो अपना ये उनका ताला है, ये हमारे पास पड़ा है, वो ये ले जाए और मुझसे मिल जाए। मैं चाहती हूँ उसको मेरा पता है कि मैं यहाँ रहती हूँ, मुझे उसका नहीं पता कि वो कहाँ पे रहती है, लेकिन अगर वो जिंदा है तो वो कभी आए और मुझसे मिल जाए। मैं अभी भी उसको याद करती Wow. हूँ। मैं इस तरह की उसमें जाके मुझे तो समझ ही नहीं आती कि ये अ, मतलब किस तरह की वो है। हम यहाँ पे ये यूरोप में देखें, ये सारे भागे फिरते हैं, जहाँ पे मर्जी जाएं, कोई वो है ही नहीं। यहाँ पे किसी इंडियन सही को देख के, और वो हमें जब हमारे रंगत देखते हैं ना, आजकल भले मुंह पे मास्क ही पहना हो तब भी मुंह से जो है वो हंसी या हेलो स्माइल निकल जाती है कि ये हमारे जैसा ही लग रहा है। सही तो बिल्कुल वहां पे क्यों नहीं यार सही बिल्कुल. Okay. You know, that brings me to a very interesting point, Devika. You know, when we were talking about the run up to Aghazi Dosti and the introduction, you were very particular to say that we don't use the word peace. We use the word friendship initiative. And in fact, even when Umair and I are chatting about how we brand this podcast as well, we talk about transformational dialogue, which is path breaking. And the more we talk about it, the more we think about it, this word peace is kind of gotten slightly politicized, don't you think?
That's true. I mean, people have different ideas about what peace is. तो वही इट्स अ मल्टीवोकल वर्ड एंड वो ये है कि उसको यही देखेंगे कि इट शुड बी देयर एंड लाइक पीस सीन एज समथिंग व्हिच इज अबाउट लाइक टॉलरेंस. मेरा उससे जो सबसे बड़ा जो लाइक वो रहता है एतराज कि हम पीस क्यों वर्ड यूज कर रहे हैं, because it's more about this thing that how we just need it for the sake of it, but we do not really understand how deep the word peace actually is. Peace is about social justice. हम अगर इसके इंडिया पाकिस्तान के हवाले से भी देखें तो it's not simply about like signing some deals. It's not like there are just people, there are just some objects across the border. It's about people. It's about the fact that हमें peace के लिए इसलिए काम करना है because there are human beings just like us across the border. हम लोग यहाँ पे जो है आर्म्स रेस की मतलब बात करें, वेपन्स की बात करें, वो हम ये नहीं देख रहे कि वो वेपन्स जो है जिस पे जाके गिरेंगे, नहीं, वो भी ये जो बॉम्ब्स है जिस पे जाके गिरेंगे वो सब जो है ह्यूमन बींग्स है. So what like this conflict has done is of course to dehumanize people. And कहीं ना कहीं जो word peace है, it has a very deep meaning. Of course, it has many meanings. But as you said very rightly, that it has been, it has been, stripped of its meaning, stripped of its essence that was there. It is just seen as, equated to something which just we should just, like people have like they're very pessimistic about peace. या फिर ऑफ कोर्स जो पीस एक्टिविस्ट लगता है कि मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना, तो इन्हें और क्या काम करते हैं, लेकिन इट्स ऑलमोस्ट लाइक सीन एज समथिंग हम कुछ कर ही नहीं रहे, जबकि द थिंग इज दैट यू रियली नीड पीस because peace is connected with development. Peace nahi hoga, it's a prerequisite for everything which can bring prosperity in our subcontinent. Though the outcomes that you expect with when people use the word peace, or when people use the word friendship, or we use dialogue, communication, the outcomes we expect are similar, right? The outcomes we expect are diminished hostility, more acceptance. They're basically trying to move the narrative, like you said in the beginning, from a slightly negative and pessimistic narrative to a slightly more accepting and inclusive and positive narrative. So I think, with the interchangeability of the words, I think the intentions are still pretty similar in that context. And Razabhai gave some very beautiful examples in terms of his own personal experiences with, stories from when he had visited this side of the border, and of course stories from, the extended community and from society as well. So if I have to talk more about, spend some time talking about the outcomes in terms of these friendship activities that you guys have driven, the outcomes that are visible to the larger community or the society that's been interacting with one another as far as these, activities and initiatives are concerned. Can you talk about some of the outcomes that you guys have seen that have really impacted society or the community through these friendship activities? The way we have seen peace build, the way we have approached peace building has been to actually, facilitate critical thinking. So what we do, we are not here to, give answers to people, answers to students, but we are here to basically, plant some, doubts in their mind, to actually get to this how knowledge is so politicized in our, subcontinent. कि हम जो सोचते हैं, हम जिस तरीके से चीजें देख रहे हैं, वो सब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, हमारी आइडेंटिटी के थ्रू हम अपनी इस दुनिया को इंटरप्रेट करते हैं. तो उस चीज को, that is a point that we really want to drive home, that we have been trying to, educate people about. And giving a sort of an example of, how this has worked out. So there was this classroom connect that we did when I think there was an attack in Pakistan, some terrorist attack. I think हमारी side पे कुछ हुआ था, LOC firing या कुछ हुआ था, and it was a very tense sort of an environment in India. So उस टाइम पे जो स्कूल था, they were very unsure कि हमें ये करना चाहिए कि नहीं, because emotions are really very high. तो क्या हो जाएगा, so they were really in doubt whether this session should be done or should be cancelled. So we were like, let's just do it. And वो वही था, बच्चे बहुत upset थे, this is what happens usually whenever there is a LOC firing या कुछ भी ऐसा incident होता है. So it was like, wherein the moment the session started, the students there, they paid homage to the soldiers who had lost their lives. And वो एक जो चीज थी जो उन्होंने expect नहीं करी थी. And then again, जो जिस तरीके से हमारा classroom connect चलता है, they're asking questions. And the fact that, they actually express solidarity with people here is what really changed their mindset.
एंड फिर उसके बाद जब हमने उनसे फीडबैक मतलब मांगा इन द सेंस कि आप बताइए आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, तो एक बच्चे ने बोला कि जैसे हम बोलते हैं कि नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, ऐसे ही हम बोलेंगे कि नेवर जज अ कंट्री बाय एक्ट्स ऑफ जस्ट फ्यू पीपल। तो ये एक हाँ जो एक एक्सपीरियंस जो हम डॉक्यूमेंट कर पाए। और भी ऐसे हैं जिसमें वो ये बात करते हैं कि वो पहले क्या सोचते थे, बट नाउ दे कैन सी दैट पाकिस्तान इज जस्ट लाइक इंडिया in the sense that it is as diverse as we are. Diverse in the sense of not just culture, not just of our ethnic identities, but diverse in terms of perspectives. And it is as nuanced as India is. जैसे हमारी reality है, it's very very complex. वैसे ही पाकिस्तान भी है. This is the kind of feedback that we have been getting from students, from teachers. A lot of times teachers are asking questions in Aman Jabbar. Then it's a feedback that we constantly get. So nobody says that, like Pakistan is a great country. And I mean, that is not our goal as well, right? We are here only and only on both sides. We are here to only tell them कि शायद जो वो सोच रहे हैं वो गलत है. I mean, there is a possibility, there is this, a third alternative which really exists. And we are here to like show them that कि मीडिया से हटकर जो उनके जो स्टोरीज जो उन्होंने अपनी कम्युनिटी या फैमिली से सुनी है उससे हटकर एक और रियलिटी है जो एग्जिस्ट करती है. That has been our goal. That has, let's say, something that we have sort of, we have in some ways also been achieving this thing. तो ये एक outcome. I mean, it's an initiative. हम इतना quantify इसको नहीं करते. That's also not how we had really imagined things to be. But this has been one thing. And एक और चीज ये है कि हम जो है prisoners, जो इंडिया पाकिस्तान में जो prisoners रहते हैं क्रॉस बॉर्डर, तो उनकी जो लिस्ट है जो बोथ गवर्नमेंट्स दैट दे एक्सचेंज लाइक, तो वो पब्लिक पोर्टल पे नहीं थी, बट आज़ादी दोस्ती जो है वो अपने ब्लॉग पे उसको अपडेट मतलब वी एक्सेस इट एंड वी पब्लिश इट. तो उससे भी एक है कि वी हैव बीन कॉन्टैक्टेड बाय लॉयर्स, वी कॉन्टैक्टेड बाय एक्टिविस्ट, एंड देयर हैव बीन सम पीपल जिन्हें पता भी नहीं था कि उनके रिलेटिव जो है वो जेल में बंद थे दूसरी साइड पे. तो वो भी मतलब एक चीज हुई है जिससे वी बीन एबल टू काइंड ऑफ आल्सो वर्क फॉर द इशू ऑफ द प्रिजनर्स एंड फिशरमैन. Thank you, Devika, for giving us that, the high points, what the sort of changes that you've been able to see because of your efforts. You and Raza have, आप लोग का experience थोड़ा ज़्यादा है हमसे. हमने ये platform थोड़ा देर से शुरू किया है. तो मुझे सच सच बताएं, आसान होता है या और मुश्किल होता जाता है? मतलब is it getting easier for you guys as the days, the months, the years go by, as you pile up on new ideas, new initiatives? Does the resistance get even more, या जिंदगी थोड़ी सी आसान होती है? जो चीज आसान है वो बस ये है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे से क्या क्या हो सकता है, तो वो उस चीज में वो एक्सपीरियंस से हमें मतलब पता है कि किस टाइप के सवाल आएंगे, किस टाइप का रेसिस्टेंस आएगा. बट ऑफ कोर्स देयर आर मेनी पीपल हु डू नॉट लाइक व्हाट वी डू. एंड बाय व्हेन आई मीन मेनी पीपल, तो वो लोग जो हैं वो स्कूल्स में भी एग्जिस्ट करते हैं. टीचर्स डोंट लाइक इट, स्टूडेंट्स जो है उनके अपने ही वो सवाल जो होते हैं, द वे दे सी अस. And then, of हाँ. course, there are other people who do not like it. There's a stigma of working on this particular issue. Yeah. And saying so, it requires a lot of cultural capital. It requires a lot of social capital to be able to work on this issue. Activism जो है दोनों countries में अगर हम देखें तो वो social privilege की वजह से हाँ. like लोग कर पाते हैं. So if you are able to take a risk, it's not because you're courageous. If you are able to take a risk, it is because you have backing. And that is how the reality goes in both countries. Do you guys have a lot of, let's say, that sort of cultural cachet or societal backing that you continue to do this despite the setbacks? No, that actually has it. I mean, it's something that we have learned कि हमारे पास होना चाहिए. होना चाहिए. तो ये right? हमारा एक learning रहा है. जब हम लोग, at least for me, it has been, I've been this person जिसे इतना नहीं पता था, बस curiosity थी. Of course, I do come from some level of privilege of my religion, Yeah, of course. privilege of the community, privilege of my education. So of course, I'm far more privileged than many other people. But of course, ये जो social capital है, I'm working on it because मैंने realize करा है कि अगर आपके पास नहीं है, तो then things will be very tough. Because of course, दोनों side पे हमें बहुत suspicion के तौर मतलब suspicion से देखा जाता है. हाँ. Why are we working on this? Who is funding us, right? And Yeah. क्या है, क्यों मतलब इस issue पे इतना इनको क्यों करना? And of क्यों? course, हाँ. like people do not want. I mean, there are beneficiaries of conflict. I mean, that is what people. अगर conflict exist कर रहा है, तो वो इसलिए exist कर रहा है
because it is helping a lot of, I mean, groups actually. तो वो उन groups को of course अच्छा नहीं लगता है, and then they have their ways of expressing their disagreement. ग्रुप्स तो खैर बहरहाल जो एंटिटीज हैं वो एंटिटीज हैं, मगर जो नी जर्क रिएक्शन, जैसे मैं पर्सनल एग्जांपल से बोल सकता हूँ, सो व्हेन आई टेल फ्रेंड्स एंड फैमिली आई एम डूइंग दिस, सो दे उनका जो इमीडिएट रिएक्शन है, अबे पागल हो गया है क्या, किस चीज में पड़े हो? सो मैं ये सिर्फ पूछना चाह रहा हूँ कि ये आवाज जो है, जो मुझे सुनने को बार बार आती है, आगे जाके इसका वॉल्यूम कम होगा या ये बढ़ती जाएगी? अबे पागल हो गया, अबे पागल हो गया, ये इस वॉल्यूम किस्म की बहुत चीजें बड़ा हो जाएगा, बढ़ता it will जाएगा। increase बहुत बहुत, because see it will be like, you know, people see it as a sort of a fascination, like कि अच्छा ये अभी कर रहे हैं, अभी कुछ टाइम के बाद बैठ जाएंगे, you know, like जब भी अभी कुछ हो गया अगर, तो then see ये कुछ नहीं बोले, you know, those sort of things that people have and they don't really expect you to work on this issue for so many years, so they are like कि क्या reason है जिसकी वजह से ये काम कर रहे हैं, and they people say अभी तो बुखार नहीं उतरा, like this is what people like tell me right, कि इतना क्या है, like इसमें कि तुम्हें इस पे इतना करने की क्या जरूरत है, then they keep telling me कि ना ज्यादा मत बोला करो और इस पे चुप रहो, अभी चीजें सही नहीं है, तो हम लाइक कि चीजें कब सही होंगी जब हम बोल सकते हैं, तो they are like कि so this thing is going to increase for sure given the situation in our countries as well, जो कि I mean it's not really going at a very high level, it's just going at the moment relations are very low, so things जो है I mean वो I don't see them improving for some years to come, and which रजा भाई, basically means हाँ अब मुझे समझ में आया कि रजा भाई की सॉफ्टवेयर की वॉल्यूम क्यों लो गई है, क्योंकि दूसरी तरफ से बहुत वॉल्यूम बढ़ता जाता है। सही है, कोई बात नहीं। हाँ, इनके वहाँ पे वो कहते हैं कि क्या कह रही थी अभी, आपका बुखार नहीं उतरा अभी हाँ, काम करने का, ये कि अभी आपका वो कम नहीं हुआ है। हमारे यहाँ कहते हैं कि सॉफ्टवेयर तब्दील हुआ है कि नहीं हुआ है आने के बाद, इस तरह से उसमें वो असल में अभी जिस तरह के हालात हुए हैं और जिस तरफ लेके जा रहे हैं, मुझे तो ये लगता है कि खैर हमारा तो बेड़ा गर्क था ही पहले से। हमारी दूसरी साइड को भी बहुत वो शौक चढ़ गया अपना बेड़ा गर्क करने का, कि अगर ये हमारा हमसाया जो है वो ये चीज़ कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते, तो हम भी करेंगे और हम दुगनी स्पीड से करेंगे वो वाली चीज़। तो भाई ये एक ढलवान है, फिसलना जो है वो एक बारी आपका हाथ छूटा तो आप फिसलते ही चले जाओगे, और इसमें से निकलने की उसमें आपको नस्लें दरकार होंगी इस चीज़ में से निकलने के लिए। और जितना बड़ा मुल्क है पाकिस्तान जैसे, तो 6 मुल्क बनेंगे तो जाके इंडिया जितना, आप इतनी बड़ी आबादी को जहरीला करने जा रहे हैं आप, मज़हब के नाम पे, सियासत के नाम पे, अपने चंद टकों के लिए, और वो टके जो है वो आपके किसी भी काम नहीं आएंगे। जब आप अपनी उसमें से थोड़ा सा वो होंगे ना, लोग आपको दबोच लेंगे। ब्लास्फेमी के नाम पे हमारे मुल्क में बहुत सारे लोग जो है वो नाहक ऐसे ही बगैर किसी वजह के, और कोई कुछ भी नहीं कर सका। तो इन लोगों को ये चीज़ जो है वो सोच, अभी ह्यूमन राइट्स वॉच की वो रिपोर्ट आई है, और दोनों के साइड से उसमें जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के जो है वो अ, मतलब ऐसे ऐसे छक्के लगाए हैं दोनों ने कि इंसानियत जो है वो शर्मा जाए, वो उस चीज़ के ऊपर उसका जनाजा ही निकल जाए, वो शर्माना तो दूर की। तो मुझे नहीं समझ आती कि एक दूसरे की नफरत में आपने ये क्यों सोच लिया है कि हमने अपना बेड़ा गर्क करना ही करना है। हमारे यहाँ जो है इस पेंडेमिक के टाइम में मिसाइलों के तजर्बे हो रहे हैं, और आप वैक्सीन जो है वो अतिये के तौर पे लोगों से ले रहे हैं। और ये किस तरह की गैरत है, किस तरह का वो एक प्राउड है आपका कि आप एटमी मुल्क हैं, और आप मांगे की जो है वो भीख में मांगी हुई अतिये के तौर पे आप वैक्सीन ले रहे हैं, और मिसाइलों के आपको तजर्बे करने के वो चढ़े हुए हैं शौक आपको। लोग जो है वो इतनी बड़ी आबादी, इतना वो सफ़र कर रहे हैं, और आप उनके अंदर नफ़रत जो है वो भरते जा रहे हैं, ताकि उनको जो अपनी जो बेसिक जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनकी तरफ उनका ध्यान ही ना जाए। और ऊपर से हम जैसे जो छोटे छोटे से आप कह लो कि
बिल्कुल चिमटी के बराबर हमारी वो नहीं है। अगर एक स्टेट के उसको देखें और हम अपने आप को वो देखें, और वो हमसे खौफजदा होते हैं कि ये बच्चों के जहन बदल रहे हैं। ये जब सारी आबादी जो है वो इस तरफ चल रही है, तो ये 4 लोग जो है वो अपनी अलग से वो लाइन बना के क्यों इधर को जा रहे हैं। ये एक बहुत ही वो है। जैसे आपको उमर भाई क्या क्या कहा था उन्होंने आपको कि पागल हो तुम, तो पागल हो गए मतलब ये वो क्यों कर रहे हो? ये पागल तो एक नहीं हो गए? ये आपके लिए एक मेडल ही समझो आप, कि आज तक दुनिया में जो कुछ भी किसी ने कोई ढंग का काम किया है ना, उसको शुरू में सुनना ही ये पड़ा है कि ये पागल है। अगर वो पागल ना होता तो ये मतलब पहले तो वो भी कोई पागल ही होगा जिसने जिस्म के ऊपर पत्ते लपेटे थे, कि इसको क्या वो मुसीबत पड़ी हुई है कि बाकी जब ऐसे फिर हैं तो ये पत्ते क्यों लपेट के फिर रहे हैं। तो ये पागलपन की वजह से यहाँ तक जो है ना वो कुछ चीज़ें आई हैं। तो अब हम मजबूर हैं हमारे इस पागलपन से, तो हमने तो अपना पागलपन जो है ना वो नहीं छोड़ना भाई, भले कुछ भी हो जाए। हम तो नहीं, अपना सही बात है। पागलपन रखेंगे जारी। एब्सोल्युटली। उसमें कोई हम बड़ी की तीर मारें ना मारें वो एक अलग वो है, लेकिन हम जो है वो अपना पागलपन हम उसको छोड़ने के लिए वो नहीं है। हाँ, उसकी जो है वो ऊपर नीचे वो हो सकती है, वो हालात को देखते हुए कि अभी थोड़ा मतलब किस उसमें रहना है किस उसमें नहीं रहना है, वो एक अलग वो है। लेकिन वो जो है ना कि अंदर से आप इस चीज को वो कोई आए और वो मार के फेंक दे, वो चीज वो नहीं है। रजा, ये पागलपन जो है ना, ये चीज जो है, ये हमारी खून के अंदर लग जाती है, राइट? और हाँ, एक बार लग जाए तो लत फिर लग गई है। लत लग गई, राइट? दैट्स अ बेटर वे ऑफ पुटिंग इट। और ये जो आप कहें, अप एंड डाउन होता है, ये इनके काफी साइड इफेक्ट्स हमारे पर्सनल लाइफ में भी हो जाते हैं। कोई आप कहें बात कि नहीं। आप 2 साल से अभी स्वीडन में हैं, उसके पहले मेरे हिसाब से आप लाहौर में थे, तो काफी चीजें हो चुकी हैं ये लास्ट 2-3 सालों में कि आपकी पर्सनल लाइफ में, कि आपने लाहौर छोड़ने का डिसीजन ले लिया और आप स्वीडन में हाँ आके बस गए। तो आपका स्टोरी क्या है, ये आप सब अप्स एंड डाउन्स में? यार, ये कह लो कि वो जो एक काज के साथ वो काम करने की, उसमें जो आप ग्राउंड पे वो जो दूसरी चीज़ें आप बर्दाश्त करते हैं ना, कि कोई ये कहे कि आप पागल हो, आप ये क्यों कर रहे हो, या कोई वैसे आपको कोई ताना दे कि तुम इंडियन हो, तुम उधर चले जाओ, तुम ये कर दो, तुम वो कर दो, वो एक अलग चीज़ है। ये वाली जो चीज़ है ना, यहाँ पे आके रहना, सारा कुछ छोड़ छाड़ के, और उसकी जो डेली जो वो है प्राइस, वो उसमें वो हम तीनों ही, हम भी और हमारे साथ जुड़े हुए जो फैमिली के हमारे दूसरे लोग हैं वो भी, वो हम सारे ही पे कर रहे हैं, रोज़ की उसमें पे कर रहे हैं। और वो बहुत ही मैं आपको मतलब क्या, वो बहुत तकलीफ दे चीज़ है वो, कि आप 40 साल जो है वो एक और उसमें जाके रहें, और आपको वहाँ से उठा के जहाँ पे उम, ना वो लोग हैं, ना वो मौसम है, ना वो कल्चर है, कोई चीज़ वैसी है ही नहीं जिसमें रहने की आपको वो हो। तो वो बहुत वो है उसकी वो। तो इसके पहले आप कहाँ, लाहौर में थे? हाँ, मैं उधर ही रहा हूँ। मैं वैसे तो मैं कसूर एक है वो लाहौर के करीब भी, जहाँ से बाबा बुल्ले शाह हैं, उस उससे मेरा वो है। लेकिन मैं कोई 25 साल से ज़्यादा मैं लाहौर में ही रहा हूँ, और वहीं पे ही था वो। और मुझे जहाँ पे मैं अपनी फैमिली को और बाकी दोस्त यारों को मिस करता हूँ, मैं अपने काम को बहुत वो करता हूँ, कि जो काम आपका करने का वो मन है, आप वही काम कर रहे हैं उसमें। जो मतलब एक फील ही नहीं आती। आप कोई जॉब ऐसी कर रहे हैं जिसमें आपको ये होता है कि यार हम दफ्तर जाना है, तो हम छुट्टी की तो होनी है, वो वाली नहीं आती थी वो, कि आपका उठना बैठना ही सारे उसमें वो है, उसी सर्कल में और उसी सारे उसमें, वो पता ही नहीं चलता कि काम कब शुरू हो रहा है और कब ख़त्म हो रहा है, वो उस तरह के, और आप उसको वो इंजॉय वो करते थे। जो दो तो तीन साल पहले जो आर्टिकल्स छपी थी, काफ़ी इंटरनेशनल प्रेस में भी वायरल जा चुके थे, बीबीसी की काफ़ी आर्टिकल्स छपी थी,
उसमें आपको पाकिस्तानी एक्टिविस्ट कहा गया था, तो उस पे आपका क्या न्याय है? मेरा जो काम था वो सारा वो था वॉलंटियर बेस काम था वो। करेक्ट। मैं 2011 से पहले मैं एक फार्मेसी पे काम करता था, और उसके बाद उस वक्त में ये जो अभी सिटिंग रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी है, मैं इसमें था। इसके लिए मैं वॉलंटियर करता था उस अपनी जॉब के बाद। और उस दौरान में जब लाहौर में ये लॉयड्स मूवमेंट चली थी, तो मैं उसमें 10 दिन के लिए गिरफ्तार हुआ था, जब ये मुशर्रफ ने इमरजेंसी लगाई थी उसमें। तो ये चेंज जो वहाँ पे मैं कुछ ऐसे लोगों से मिला था कि बाद में जाके वो एक एक्टिविज्म की तरफ मैं आया, और एक वो पीछे वाला वो जो था ना, एक मिडिल क्लास मजहबी फैमिली वाला, वो पीछे छोड़ के और आगे राइट। की तरफ आप वो आए, और वो सारा वो उस तरफ। तो हम जैसे एक अवामी आर्ट कलेक्टिव के नाम से हमारा एक इनिशिएटिव था, जो हमने राइट। पेशावर में जब वो एपीएस का अटैक हुआ था उसके बाद हमने वो चीज़ शुरू की थी। शुरू में हमने उसका नाम रखा था रिक्लेम साडा लाहौर के नाम से, राइट। कि शिद्दत पसंदी मजहबी इंतहा पसंदी के। फिर बाद में उसको अवामी आर्ट कलेक्टिव का, उसमें हम 14 मेंबर थे, जिसमें से 12 वो थे जो आर्ट पढ़े हुए थे और आर्ट पढ़ाते थे वहाँ की यूनिवर्सिटियों में। तो हमने वो, आप कभी देखिएगा हमारे उस पेज पे जाइएगा, वो बहुत अच्छा वो काम था वो। फिर हमारे पास ऑफिस में स्पेस थी, वहाँ पे ये फेमिनिस्ट कलेक्टिव वाले भी आते थे, उनके साथ भी था। ये लाहौर में ऑरेंज मेट्रो ट्रेन का प्रोजेक्ट हुआ था, हमने इसके ऊपर लाहौर बचाओ के नाम से एक मूवमेंट स्टार्ट की थी। हम गवर्नमेंट के खिलाफ हाई कोर्ट में केस भी जीत गए थे उस पर। तो वो बाद में वो सुप्रीम कोर्ट से जाके उन्होंने कोई वो डील करके और वो अपने हक में वो फैसला लिया, वो उस तरह का वो था। तो उसकी वजह से वो एक लॉ पाकिस्तान की एक्टिविस्ट की वो थी कि मतलब उसमें सिर्फ इंडिया पाकिस्तान का काम नहीं था वो। हम जहाँ पे वो वाली अभी जो हम बात कर रहे थे ना कि मुआशरे की उसकी तरफ से आपको किस तरह के इश्यूज का सामना करना पड़ता है इस काम के लिए, तो आप ये कह लो कि हम वो दूसरे उसमें से वो जो जो माइंड जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, हम अपने उस दूसरे काम से वो चीज़ पहले ही साफ कर रहे थे इस चीज़ के लिए कि ये यहाँ पे पहले अपने इनर सर्कल में जो चीज़ें हैं, जैसे ये मज़हब की बेस पे, सियासी इख्तलाफ की बुनियाद पे, जेंडर की बेस पे, वो वाली एक दूसरे के साथ वो चीज़ ये इनके अंदर ना रहे, और फिर उसके बाद जाके ये दूसरे उसमें भी जाके वो चले जाएं वो। तो वो एक इस तरह का वो था वो काम वो। नहीं, आई एम श्योर दैट मस्ट हैव बीन अ वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर यू रजा भाई, 2017 में, 2018 में। एंड आपके साथ और भी कोई कोई लोग थे। आई एम श्योर इट मस्ट हैव बीन अ वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर एवरीवन इन्वॉल्व्ड, एंड वेरी ग्लैड टू सी कि आप उसके बाहर आके आप अभी स्वीडन में थोड़ा कंफर्टेबल सेटल हो गए। ऑफ कोर्स लॉट ऑफ सैक्रिफाइसेस टू हैव रिलोकेटेड फ्रॉम योर हाउस एंड वर्क एंड Yeah, फैमिली एंड फ्रेंड्स, yeah. बट फिर भी आपका जोश हाई है। एंड आई थिंक इट्स वेरी इंस्पायरिंग एंड वेरी रीअश्योरिंग टू सी कि आपका जोश इतना हाई है, ये सर्कमस्टांसिस के निकलने के बाद। एंड आई थिंक इट गिव्स a generation of people a lot of confidence and inspiration वो to keep वो going. जोश आएगी जो है वो बहुत सारे उसमें क्या कह लो कि इंडिविजुअल्स हैं। मेरी किस्मत अच्छी कि मुझे दोस्त अच्छे मिल गए। एक आपके साथ बैठी हुई है, एक यहाँ पे मेरे घर में है मेरे साथ, और बाकी बहुत सारे वो हैं। तो वो जो आपको एक स्पोर्ट का वो होता है ना पीछे से वो आपका जोश हाई रखने के लिए वो बहुत उसकी बहुत वैल्यू है कि पूरा एक आपका एक सर्कल, जब आपको एक पीछे से वो सपोर्ट आपकी बेस रहे। वरना तो ये जिस बारे में आप बात कर रहे हैं उसमें अगर वो पीछे से सपोर्ट ना होती तो मतलब अकेला मैं तो वो तो कुछ भी नहीं ना। फिर वो तो वहीं पे ही बात जो है वो आई गई हो गई थी वो। तो वो तो पीछे से वो थी वो तो उसकी वजह से वो चीज़ वो हुई वो। नहीं, और ये absolutely.
Aghazi Dosti, how long has it been? When did you guys start it? What was the year that it started? Devika? 2012 में start किया था. 2012, so it's been a while. So did you जो initial batch में, let's say आपने जिन students को introduce किया होगा या कोई आपके classroom project में या कोई calendar में कोई किसी से in touch आप रही हैं जो उस early years में से, and to see कि इसका longitudinal क्या impact है, या for example मैं कहता हूँ कि जो 2021 के calendar में जो हैं जिन लोगों ने contributions किए हैं, like if I were to give you a time machine and say, you know what, you can go 20 years into the future and see कि oh, this is that thing, ये वो calendar या वो ये वो platform था जिसकी वजह से हमने इनका perspective broaden हुआ और फिर वो 20 साल बाद वो ये achieve कर सके. So what's that big goal, big dream for Aghaze Dosti? See, I mean, first of all, there are many students जिन्होंने सबसे first calendar launch में painting भेजी थी और उनमें से कुछ जो है वो आज भी भेज रहे हैं. So it's like that, there have been this continued relationship with many people, with many teachers, with many students. And ये है कि वो अलग-अलग activities में तो वो है कि we have grown together. I think I would say not just the students and teachers, but we all have grown together in this initiative. कि हमारे जो थिंकिंग है वो ब्रॉडन हुई है. वी हैव ट्राइड टू लुक एट पर्सपेक्टिव्स इन अ क्रिटिकल मैनर. और हमारा जो गोल है और जो रहेगा वो यही होगा. बिकॉज टू बी ऑनेस्ट दिस पर्टिकुलर इशू देयर इज अ रोल ऑफ पीपल इसमें, बट एंड में इट इज अबाउट द पॉलिटिक्स. एंड में इट इज अबाउट द फैक्ट दैट जो पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, जो हमारी रूलिंग क्लास है वो क्या चाहती है, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो क्या चाहती है. तो देर इज लिटिल I mean, अगर हम उसमें देखें कॉर्पोरेट क्या चाहते हैं, तो वो सारा जो एक मैसअप है, जो एक पॉलिटिक्स, जो एक कनेक्शन इनका चल रहा है, उसमें हम कितना कर सकते हैं, कितना उसको डाइल्यूट कर सकते हैं. आई डोंट रियली नो दैट. मैं बहुत कम उसमें होप्स भी रखती हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट. बट आई थिंक ऑल द इनिशिएटिव, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि जितने ज्यादा लोगों में हम क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कर सके उतना मतलब जरूरी है. That should be our goal. I really don't know whether there will be peace, whether there will be friendship between the two countries officially, और ये सब. और टू बी ऑनेस्ट जिस तरीके से हमारे जो ये दोनों कंट्रीज मूव कर रहे हैं, जिस राह पे वो चल रहे हैं, मुझे वो होप जो है बहुत कम लग रही. बट द थिंग इज कि इंडिविजुअल लेवल पे और जिस लेवल पे हम स्कूल्स में बात करते हैं, उसमें क्रिटिकल थिंकिंग हम जिस एक्सटेंट तक ला सकते हैं, आई थिंक आवर गोल शुड बी दैट. आवर गोल शुड बी, चाहे वो छोटा ही सही, बट वो होना चाहिए, एंड इट शुड बी कंटिन्यू no matter what happens. And this is something that we have continued even when we did face like the lowest, I mean हमारी initiative की history में we still were conducting activities. Amazing. Blown away by your stories. It gives a lot of perspective on I mean, we've done a bunch of episodes before, Devika. We were speaking earlier in the year as well, but like hearing from you and Raza directly, and then understanding the sort of dream that you had in a time, a better part of the decade now, almost going to be 10 years now, right? Yes. That you've built, that you put into building this, and how it's a self-sustaining sort of organism. So आपके जो वो, let's say, peace नहीं, transformative dialogue, right? उसका जो कीड़ा है वो मतलब it doesn't necessarily need to be in you or in Raza. So it's something that can then spread on its own, and someone from your, let's say, your 2012 batch can then take that light and then move forward. And I think this is both its वो ट्रांसफॉर्मेटिव डायलॉग का जो ट्रांसफॉर्मेशन का की कैटलिस्ट है वो भी ये है, और जो आपको रेजिस्टेंस भी मिल रही है उसका भी आई थिंक चीफ एंटागनिस्ट या फियर यही है कि what if it takes a life of its own, and it's not just these 2-3 people or these hundreds of people or these thousands of people. What if it spreads like wildfire and it can't be contained? Tough but very interesting road. Thank you so much, Devika and Raza bhai, for joining us. It's been an absolute pleasure to hear your story and to hear
both the victories and the milestones on one side, and of course the personal challenges and the sacrifice and the compromises that you've made over the last decade, in keeping the initiative going, and keeping the friendship initiative really going, as we called it. And we hope that Umair and I are taking small steps in the same direction, and we can learn from you guys, and and get inspired from your story. So thank you both. Raza bhai, बहुत बहुत शुक्र है कि you could join us today to share your story with us and our listeners. And thank you so much, Devika. Pleasure connecting once again. It was an absolute pleasure to have you both with us on this podcast. Thank you, आप Suvir and Umair. Thank you for doing this, for actually, taking this movement forward. We need more and more voices. We need more and more initiatives. And you people also faced, you had choices to make, but you obviously made the choice to go with what is right, even though, of course, it brought in a lot of challenges for you. Yeah, that is interesting, Devika. So thoda sa Suvir, I'd like to go on this. So you guys have made choices before us, and we're making those choices now. वो पूछते हैं ना कि so what mistakes should we avoid? I Is wish there we something? had something to What? I think we were very, very careful. I have to be honest. We were very, very accountable. I don't know, We Raza were bhai. I mean, careful. मतलब घुस के नहीं मैं फटने वही वाले बता रही टाइप हूँ इंसान लग रहे हैं मुझे. नहीं लेकिन He's हम not. He's अपने not tempered down. He's like कोई बात नहीं, ऐसी की तैसी. रजा मैं भाई तो का फिर जोश लेकिन अलग है वो उसमें फिर ये भी है ना कि एक आपका जोश है तो साथ में होश वाले भी है ना जो हाँ आपकी तो टांग Correct. नहीं आपकी लेकिन टांग वो भी तो है Correct. जो ना आपकी we जो were आपकी जो आपकी टांग खींच देंगे कि भाई खलोया होने से आगे नहीं जाना हम बस संडे तो आपका शायद यार वो वाली शायरी का दिन रहा, रजा भाई, वो संडे. वाली चीज है वाकई एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि अभी जो बात कर रही थी ये बीज बोने वाली वो है, दरख्त लगाने वाली वो है। अब जो है वो आपका काम है दरख्त लगाना, बीज बोना ज़मीन में और उसकी जितनी हो सके वो देखभाल करना। कब वो इससे वो दरख्त कल को बड़ा हो, उसका कोई और फ़ायदा उठाए, आप एक उम्मीद की वो एक उम्मीद है वो। ये जो बच्चों के साथ काम करने की वो है, उनको उसमें एंगेज करने की वो है, या आप जो काम ये जो कर रहे हैं अभी जो हम ये एक उम्मीद से जुड़ी हुई चीज़ है ना यार ये। और जो वो एक बॉलीवुड का गाना भी है कि जोत से जोत जगाते चलो, प्यार की गंगा बहाते चलो, ये वो वाह वाह. वही ये वही है ये वही है। रजा भाई, कभी अगर आप एक्टिविज्म से बोर हो जाएं तो एडवर्टाइजिंग की दुनिया में इंडिया पाकिस्तान में तो आपके लिए रोल है, ठीक है? जितने आप पोएट और शायर है ना अंदर से, मतलब हम हर एपिसोड में ढूंढते हैं कि वो कौन सा मोमेंट है या कौन सी बात है जो फिर हम एपिसोड का नाम रख लेते हैं। इस मोमेंट में मतलब मैंने इतने सारे लिख लिए हैं, वो बीज बोना भी हो सकता है, वो होश और जोश भी हो सकता है, मतलब फर 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 ऐसे जबरदस्त डायलॉग मार रहे हैं कि a lot of them really make sense and I think one of them, Subir, we have to keep like one of these, हम इसको फिर से रिव्यू करेंगे और इनमें से एक जो है एपिसोड का टाइटल हो जाएगा दरख्त लगाना। ओह क्या बात, कूल। इस वक्त जो है वो वैसे गपशप लगाने के लिए इस तरह की मीटिंग जो है वो जरूरी है, हम अप्रिशिएट करते हैं जी। हम भी मतलब हमारा तो काम ही है, हम आइडियाज ऐसे ही भेजते हैं, वो होता तो कोई और है लेकिन उसको अंदाजे बयान होता है ना जो उसको खास बनाता है। पैंडेमिक का टाइम है तो किसी दिन वैसे गपशप लगाएंगे। एब्सोल्युटली। बहुत अच्छा लगा आप Look दोनों forward. से मिलके, और कोई के जैसे कोई अपना ही मिल गया कहीं पे वो कोई, तो वो वाली फीलिंग है। बहुत अच्छा लगा आप दोनों से मिलके, और खुश रहें। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसको कंटिन्यू रखें। जहाँ पे कभी हमारी कभी भी वो आपको वो आए कि तो हम हाजिर हैं इसके लिए। Thank you so much, Raza bhai. Thank you so much, Devika, once again. Have a lovely day and thank you for joining us.